Welcome to the story of my life and the lessons I learned in it. So, this is part 2. I think I should not start saying which part because I know for sure once it becomes an overwhelming big number, then I will not be able to tell the correct part number. So, forget you heard that. Now, so this is the next chapter definitely. In the last one, I told you about Jammu and Kashmir and my experiences there. And so, what happens after I pass first standard? So, I passed first standard, and then we got a posting to Nagaland. Okay, but Nagaland is a place where what my father was informed, that you cannot keep family, and it's not a family posting. So we thought that okay, then till then we have to live in our hometown. So this story of this chapter is gonna be divided into two parts. First part is where I'm in hometown, and second part when I'm in Nagaland. Okay, because eventually when he goes there, he finds out that few families are able to live here. It takes some time, but I'll be able to get you guys in. So that's how it happened later on. So first part is when we move to the hometown, because just after Jammu and Kashmir we have to now move to our hometown, and that is a big stress for our family because my mother and all of us thought that we'll always be safe in this campuses, and because campus has a kind of a standard which rest of the India does not have. Like, yeah, definitely there are some great residential properties, lavish ones. They will definitely be much better than campuses, what we used to have in campus, but at least with the kind of a price point we were for the middle class people, campus is much better than what kind of life middle class have outside, right? So that's what I am meaning by that. And it was a shock for all of us that damn it, we have to move with the civilians, civil people, and it'll be tough. And on top of that, it's gonna be our hometown. It's not like I hate our hometown, but it was just good enough to visit in गर्मियों की छुट्टी and stuff like that. बट उससे ज़्यादा उसमें जाना पड़ेगा तो फिर वो चाम भी चला जाएगा. वहाँ पे हम रहेंगे कैसे? छुट्टी बिताना तो ठीक लगता है, बट हमें जो डेली के लिए जो चीज़ें चाहिए, खेलने की जगह, दोस्त वगैरह, वो सब चले जाएंगे. तो हम लोग सभी दुख में डूब गए थे. वैसे हम बहुत छोटे थे, मुझे ही वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें समझ आ रही थी, और ऑफ कोर्स मेरी मम्मी दुखी थी, पापा भी थोड़ा, पापा तो हमारे साथ जाएंगे नहीं बिकॉज वो तो नागालैंड ही जाएंगे, उनकी तो पोस्टिंग वहाँ है, हम ही जाएंगे. तो मैं और मेरी मम्मी दुखी थे, और मम्मी को 2 और बच्चे संभालने थे मेरे अलावा. सो या दैट इज़ हाउ इट वाज. सो स्लोली अब क्योंकि मम्मी और मैं अकेले हो गए हैं और पापा नहीं है, तो दिस इज़ वेयर द एल्डेस्ट डॉटर वाला ट्रॉमा स्टार्ट्स, कि आपको को पेरेंट के जैसे ट्रीट करने लिया जाता, मतलब करने शुरू कर देते हैं पेरेंट्स, करने लग जाते हैं ये लोग. आप 5 साल के हुए नहीं, आपके भाई बहन पैदा हुए नहीं, तो अब आप एक अब आप भी बिग इनफ हैं टू बिकम अ गार्जियन, टू बिकम अ पेरेंट. तो अब आप साथ में इनकी पेरेंटिंग कराओ. एज इफ ये दुख कम नहीं है कि 5 साल ही मुझे अपना बचपन जीने मिला. ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे माँ भी बनना होगा. अब मुझे इनकी माँ भी बनना है. अब मुझे इनकी केयर करनी है. मैं नैनी हूँ, मैं केयर टेकर हूँ, मैं बेबी सिटर हूँ. मैंने ये बच्चे पैदा किए हैं तुम्हारे साथ, या मैंने इनका ठेका लिया है. मेरा भाई बहन है यार, मैं इनके साथ मैक्सिमम खेल सकती हूँ, बट ये सब चीज़ें कि इनके लिए दूध गर्म करके लाओ, इसको ये दो, वो कराओ, भाई मैं को पेरेंट नहीं हूँ. बट उस टाइम पे मुझे ये सब चीज़ें, अपने राइट्स का कुछ पता नहीं था, और वैसे जब पता भी चल गया तो वहाँ पे मैंने क्या ही कर लिया. पर मुझे रेतना मम्मी शुरू कर चुकी थी फ्रॉम दिस टाइम, बिकॉज शी वॉज लाइक, I need help. If not my own child, who can I go to? Bitch, to somebody who has taken care of kids. I have not, and I am kid, right? So वो चीखने का मन मेरा करता था, पर मेरे पास तो उस टाइम पे सही शब्द भी नहीं थे इन बातों को बयान करने के लिए. देन यहाँ से मम्मी का शुरू हो गया, अंकु बेटा यहाँ मत, अंकु बेटा ये कर दो, अंकु बेटा मेरी प्यारी बेटा है ना, ये कर देगी. प्यारी बेटा के चक्कर में बेटी का पूरा निकाल दिया, मतलब ऐसे तैसी कर दी. एनीवेज, फिर हम पहुँचते हैं जो कि मेरा होम टाउन है,
राइट। हम यूपी के रहने वाले हैं, तो यूपी में हम लोग जाते हैं और वहाँ पे हमें रहने के लिए, हमने जब बताया कि हमें रहना है यहाँ पे, तो वहाँ पे ऑलरेडी एक फैमिली जो है हमारे मतलब रिलेटिव्स की, वो रहती थी। और पीछे साइड का जो घर था वो खाली था, मतलब घर के 2 पोर्शन टाइप के थे, तो आगे वाले में वो रहते थे, तो पीछे वाले में हमने जाके रहना शुरू कर दिया। अच्छा, वो इतना हाइजीनिक नहीं था वो जगह। ऑफ कोर्स अब वो कैंपस क्वार्टर्स, गार्डन्स एंड वॉकिंग पाथ्स, इट्स जस्ट अ होम टाउन इन यूपी, इट्स नॉट गोना बी दैट लैविश, राइट। तो वहाँ से मुझे समझ आया कि भैया जो लोग करते हैं बनारस की गलियों के साथ रोमांस एंड ऑल, उनको लगता है कि गलियाँ बहुत ही सही हैं इंडिया की वगैरह, तुम्हें मुबारक है, पर मैं नहीं कर सकती। That doesn't make me anyone better than you or you are less than me. Maybe you can call me less than you because I just can't. वो गलियाँ, वो नालियाँ, ये मुझे नहीं समझ आता। मुझे हाइजीन चाहिए हर जगह जहाँ भी मैं रहूँ। इसीलिए the reason is I live in Kerala, right? It's cleaner than compared to the North India, right? And on top of that, I live in Trivandrum, so it's pretty peaceful and clean city. And very green also, so clean and green, that's what I like. So ये मुझे वहाँ पे समझ आ गया था कि मेरे लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड्स कुछ अलग हैं। तो मतलब इस छोटे एज में मुझे ये समझ आ गया था कि मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैं ऐसी जगह नहीं नहा सकती, मैं ऐसी जगह नहीं, मतलब मैं जब भी मेरे को ना अपनी लाइफ में ऐसी गंदी जगहों पे रहने के लिए, मतलब आई वॉज फोर्स्ड, लाइक दैट टाइम आई वॉज वॉट 6 years old only, 6-7 years, आई थिंक आई वॉज रीचिंग दैट टाइम, एंड आई वॉज लाइक मैं क्या करती थी उस टाइम पे, एक कोना बनाती थी अपने रूम में। आई थिंक बहुत सारे बच्चे से रिलेट कर पाएंगे, ग्रोइंग अप इफ दे लिव्ड इन प्लेसेस विच दे डिडंट फाइंड क्लीन इनफ, गुड इनफ, लैविश इनफ फॉर देम, दे विल मेक अ कॉर्नर फॉर देमसेल्व्स, जैसे आप भगवान का बना देते हो ना मंदिर एक जगह पे, और उसको आप साफ रखते हो, उसको सुंदर रखते हो। तो मैंने भी अपना एक कोना बना लिया था। मैं जिस भी घर में गई हूँ उसके बाद से कभी भी अगर हमें कोई इतना सुंदर क्वार्टर नहीं मिला वगैरह, तो मैं अपना कोना बना लेती थी जिसको मैं साफ़ और सुंदर रखती थी। उसमें अपना सबसे फेवरेट पिलो हो गया, राइट, अपने फेवरेट या बेडशीट हो गई या कुछ भी है, राइट, अपने स्नैक्स हो गए, वो कोने को मैं एकदम से अच्छे से करके रखती थी, और ताकि मैं उस जगह कम से कम सुरक्षित रहूँ। मुझे याद है जब भी मैं ऐसी जगह पे रहना पड़ा है जो साफ़ नहीं थी, सुंदर नहीं थी, आई ऑलवेज स्टेड लाइक दिस देयर, लाइक माई बॉडी विल ऑलवेज जस्ट कंस्ट्रिक्ट इटसेल्फ, लाइक ऐसे छोटे से हो जाओ, जस्ट कोई गंदगी टच नहीं हो जानी चाहिए, लाइक ओ कहाँ पे हैं हम। एंड आई हेटेड एवरी सेकेंड ऑफ इट, राइट, वेन एवर आई हैड टू लिव इन नॉट क्लीन इनफ, नॉट गुड इनफ प्लेसेस, राइट। ये जो घर आप देख रहे हैं, ये ब्रांड न्यू घर मुझे मिला है यहाँ पे। मतलब मैं जब प्लान कर रही थी केरला आने के लिए, इट्स ऑल्सो इज़ अ ब्यूटिफुल स्टोरी हाउ इट एंडेड अप हैपनिंग, बट दिस होम ऑल्सो टर्न्ड आउट टू बी लाइक नवंबर में बना है, दिसंबर में मुझे मिल गया ब्रांड न्यू घर। इसकी सारी दीवारें, सब कुछ एकदम इतना नया और साफ। और ये एक्चुअली यहाँ के जो मेरे जो लैंडलेडी लैंडलॉर्ड्स हैं, वो भी बहुत ही सफाई फ्रीक पीपल हैं, लाइक दे वांट एवरीथिंग क्लीन लाइक टू द टी। सो वो भी बहुत सफाई यहाँ पे करके रखते हैं। उनका वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है, जबकि वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम केरला का इतना अच्छा नहीं है, या केरला वाले ऑल्सो नो दिस, बट मेरे घर का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ पे वाटर का सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छे से है, और बहुत ही साफ़ और सुंदर, मुझे भी इसको रखना पसंद है। सो यहाँ आके मैं ऐसे खुल के रह पाती हूँ, मैं मतलब मैं महसूस कर पाती हूँ वैसे, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ इतनी साफ़ सुंदर है। सो मतलब, और जब भी ऐसी जगह रही हूँ तो मुझे वैसा फीलिंग रहा है। तो उस घर में मुझे पहली बार ऐसे एक ही फीलिंग्स आने लग गई थी कि यार क्या है, कैसे सा है, मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है, छी ये सब चीज़ें, फंगस है यहाँ लगी हुई, कभी ऐसा है, सीलन है, ई लाइक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो यहाँ पे मेरा मतलब ये स्टार्ट हुआ कि भैया आई डिज़र्व लाइक लैविश थिंग्स। तो टीवी वगैरह हम जब देखते थे ना, तो टीवी में सुंदर सुंदर कपड़े पहन के अगर एक्ट्रेस आ रही हैं, तो उनके सुंदर सुंदर घर, तो ऐसा लगता था भाई इसके लिए ज़िंदा है, यहाँ पहुँचना है, यहाँ जाना है, ये जहाँ भी है मैं बड़ी होंगी, मैं पता कर लूँगी, मैं यहाँ जाऊँगी, यहीं रहूँगी, ऐसी जगह ही जाने वाली हूँ मैं। मुझे ये तब से मेरे को समझ आ गया था। और एल्डेस्ट डॉटर का काम फिर मेरा ना बढ़ता ही रहा वहाँ पे। ये तो हो गई एक चीज़। और वहाँ पे मेरी पियर्सिंग वगैरह मम्मी ने कराई। मेरा जो कान में पियर्सिंग और नाक में पियर्सिंग सब मेरी जो है
ये वहीं पे हुई है मेरी होम टाउन में, बिकॉज मॉम वाज लाइक कि और बड़ी होगी तो फिर स्किन इसकी और ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और फिर पियर्सिंग करना मुश्किल होगा और दर्द होगा, खून निकलेगा, अभी करा देना चाहिए. And I have always been a very sensitive kid. Sensitive, not just in every way I've been sensitive, I mean. So, even my skin was so sensitive. So, piercing हुई थी तो मैं तो रह गई थी, मतलब बहुत बुरे हाल हो गए थे मेरे. इतना सिकाई और इतने मिक्सचर वगैरह लगाने पड़ते थे, इतना इन्फ्लेमेशन मेरे हो जाता था. उफ, that was another like a bad time. Like, and I felt like कि यार मैंने तुम्हें नहीं बोला कि मुझे पियर्सिंग करानी है या मुझे शौक भी है पियर्सिंग का, मुझे इंजॉय करना है, ऐसा कुछ. और जब मैं करना होगा उस टाइम पे करा लेंगे. ऐसा नहीं कि बड़े लोग पियर्सिंग नहीं कराते. आगे जाके मुझे ये समझ आया बड़े लोग भी तो कराते हैं ना. आजकल तो लड़कियां मतलब इस एज पे जाके पियर्सिंग कराती हैं और दुनिया भर के ड्रग्स आ गए हैं, चीज़ें आ गए हैं. लाइक दे कैन इवन टेक केयर ऑफ इन्फ्लेमेशन. हाँ, थोड़ी स्किन थोड़ी मोटी हो जाएगी तो एनेस्थीसिया है भाई, वो लगा के कर देंगे. फिर पेन किलर्स हैं. उस टाइम पे क्या था ज़रूरत वो कराने का, मतलब. और उस टाइम पे करने जो आए थे वो कोई इलेक्ट्रिक गन से नहीं करने वाले आए थे मेरे. कोई एनेस्थीसिया नहीं था वहाँ पे. इट वॉज प्योर टॉर्चर, राइट. वो मतलब ऐसे करके पता नहीं कुछ नुकीला सा लेके आते हैं जो वो घुसा देंगे तुम्हारे उसमें और वो स्पेस बनाएंगे तुम्हारी नाक के अंदर इसमें. अरे बाबा रे भाई, मेरा वो याद करके इज जस्ट लाइक what all fuck I have been through. Like I really just feel that like body autonomy एक औरत की है कि नहीं उसके ऊपर, ये मेरे को अपने चाइल्डहुड में समझ आया था कि भैया नहीं है. मतलब कुछ भी. मेरी मम्मी, और मैं मम्मी से पूछती हूँ जब कि क्यों कराई यार, मैं तो इतनी सफ़र कर रही हूँ, इतने मैं रो रो के सोती थी उन रातों में, इतनी सूजन होती थी मेरे, इतना प्रॉब्लम होता था काफ़ी दिनों तक जो कि मेरा हुआ. उसमें वो भी सफ़र करी है क्योंकि उनको इतनी सारी चीज़ें लगानी पड़ती कि मैं पूरे टाइम रो रही हूँ. सो देन आई आस्क्ड हर कि क्यों कराई आपने यार, ये मेरे क्यों कराई मम्मी, आप ऐसे क्यों करती हो. सो शी सेज अरे बड़ी हो जाएगी ना तो तेरे को झुमके पहनने का मन करेगा, तेरे को ये करने का मन करेगा, तेरे पास तब होगा नहीं, और ये बड़े होकर कराने पे ऐसा हो जाता है. बेटा मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने तेरे अच्छे के लिए ये किया, मैंने करा दिया. तो ये फीलिंग आना शुरू हुई कि कई बार जो पेरेंट्स बोलते हैं मैंने तुम्हारे अच्छे के लिए किया है, वो ना उस मोमेंट में अच्छा फील होता है. एंड नाउ इफ आई लुक बैक मुझे भी अच्छा फील नहीं होता है. ऑफ कोर्स आई यूज़ माई पियर्सिंग्स एंड आई एम सो सेंसिटिव. अब इनमें रियल गोल्ड डायमंड और जो भी है, मतलब रियल एलिमेंट्स के अलावा और कुछ मेरे को जमता ही नहीं है. मतलब रियल गोल्ड सिल्वर ही पहनना पड़ता है. तभी तो आप देखेंगे कि मैं ईयररिंग्स और ये नोज पिन्स पहन के नहीं रखती हूँ रेगुलर में, क्योंकि मुझे फिर एलर्जी हो जाती है. सो अब बताओ किस काम की है ये. मतलब अगर आगे जाके मेरी सेंसिटिविटीज़ के हिसाब से तो मैं तो शायद हमेशा प्रेस ऑन वाली चीज़ें पहनती, और बाल तो मुझे हमेशा खुले रखने पसंद है. इसके बारे में मैं बताऊँगी. सो ये तो फिर कोई क्या, शायद मुझे ज़रूरत भी नहीं लगती. कान पे पहनने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज बाल हमेशा सामने ही रहते हैं, ईयरिंग्स तो किसी को दिखेंगे भी नहीं, और नोज़ में मैं प्रेस ऑन पहन सकती हूँ. तो मैं शायद कभी पियर्सिंग कराती ही नहीं. बट दीज थिंग्स रिमाइंड मी आई हैड नो बॉडी ऑटोनॉमी एंड आई हैड नो पीपल अराउंड मी विच कैन इवन थिंक अबाउट दिस कि औरतों की बॉडी पे उनकी ऑटोनॉमी होती है. और मेरी मम्मी ना बचपन से मुझे दुल्हन के, मतलब एक छोटी दुल्हन हो गया, मतलब दुल्हन टू बी, लाइक ब्राइड टू बी के जैसे ही सब कुछ कर रही है मेरा. मतलब ये बात आप देखेंगे आगे मेरी और वीडियोस में आती हुई कि वो ये सब चीज़ें इसीलिए करा रही थी. ये सब तो मेरे को कहने का मतलब था कि हाँ तुम ये करोगी, पर जो दुल्हन बनती है तो उसको ये सब पहनना होता है. और उस टाइम में मम्मी के ऊपर उंगलियां उठाई जाएंगी कि तुम कितनी इरेस्पॉन्सिबल मदर हो, तुमने इसको प्रिपेयर नहीं किया दुल्हन बनाने के लिए, इसके कान वान और नाक क्यों नहीं छिदे हुए हैं, राइट. छिदे हुए होते तो दुल्हन बनाने में इजी होता है. इसको वो झुमका पहनाएंगे, वो कान वाले वो बाली बनाएंगे. मैं ये नाक के टाइम पे कान क्यों बोल रही हूँ बार बार. एनीवेज इसको वो नथुनी पहनाएंगे वगैरह वगैरह, राइट. सो वो उसके लिए मुझे तैयार कर रही थी. और ऑफ कोर्स लाइक उनका वो है वैलिड है एटलीस्ट जो वो कह रही हैं, बट यार मुझसे पूछ तो लो, वो प्रोसेस मुझे दिखा तो दो. बट वही है, ये सब ना हम लोग बोलते हैं कि अरे इतना बात पूछता है, तो वेस्टर्न लोग करते हैं. वेस्टर्न लोग तो भाई बच्चे का नाम भी रखते हैं तो उसके कंसेंट से, बच्चे का सोशल मीडिया उसके कंसेंट से, उनको कंसेंट पता है. हमारे यहाँ पे इसको क्या पता होगा, तो बच्ची है. अरे भाई दर्द तो होता है ना, मुझे सहना तो मुझे पड़ेगा, शरीर तो मेरा है. नहीं, हमने तुम्हें पैदा किया है. तो दे जस्ट स्टार्ट टू थिंक कि तुम इनकी ही कोई एक्सटेंशन हो, तो तुम्हें जो चाहिए वो इनके साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. तुम चाहते हो तो तुम कर सकते हो. ये कैसी बकवास बात है. तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे मेरे साथ हुई. और जो मैंने हाइजीन का आपको बताया,
वहाँ पे मेरा स्कूल भी चेंज हुआ था, पर उस स्कूल से मेरा कोई ऐसा ट्रॉमा नहीं है, कोई बुरी वो नहीं है, पर वही है गंदी संदी गलियों में से होके जाना पड़ता था, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वहाँ पे मैं अपने कज़न वगैरह के साथ जाती थी स्कूल, मेरी बहन भी मेरे साथ स्कूल जाती थी, और वो तो उस स्कूल की वजह से हिंदी मेरी इतनी अच्छी हो गई थी कि मैं जब वापस केवीज़ में गई तो मेरी हिंदी वहाँ पे बहुत ही टॉप नॉच होती थी। सो एनीवेज वो हिंदी मीडियम स्कूल था, तो ये भी थोड़ा रहा मेरे को कि इंग्लिश से हिंदी मीडियम शिफ्ट हो गई, फिर हिंदी मीडियम से वापस इंग्लिश मीडियम, नागालैंड जब वापस गए। एनीवेज सो ये सब चीज़ें रही वहाँ पे रिलेटिव्स को लेके कुछ चीज़ मैंने जानी कि मेरे रिलेटिव्स ही नहीं, क्योंकि जो रिलेटिव्स का पूरा सीन है, मतलब कैसे कहा जाए कि कोई भी इतना सगा नहीं है वहाँ पे, मतलब आपका, और रिलेटिव्स ही नहीं, मेरे मम्मी पापा के खुद के भाई बहनों के बीच में काफ़ी अंदर चीज़ें हैं। मतलब ऐसा समझ आया कि जो बड़े लोग होते हैं खुल के बात ये भी नहीं कर रहे हैं। हमारे पास तो, हम तो छोटे हैं, हमारे पास शब्द नहीं है उन चीज़ों को कहने के, वो कैब नहीं है, कह लेंगे जब आ जाएगी। बट इनको क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं कर पा रहे आपस में बात? ईगो की वजह से नहीं कर पा रहे। एक दूसरे को ये दिखा रहे हैं कि हमारी फैमिली तो परफेक्ट है, हमारा तो सब कुछ सॉर्टेड है, हमारा सब बहुत अच्छे से चल रहा है। नहीं चल रहा है, मुझे पता है नहीं चल रहा है, उनका भी नहीं चल रहा है। कम से कम दुखी शेयर कर लेते, बट नहीं, ईगो है, किसी को नहीं बता सकते हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। वो प्रॉब्लम्स अगर निकल आई सबके सामने तब शेयर कर दी जाएंगी, तब भी उनको थोड़ा देर बाद मिनिमाइज कर दिया जाएगा ताकि किसी का टेंशन ना जाए। सो बिकॉज एज इफ यू हैव प्रॉब्लम्स दैट मीन्स यू हैव फेल्ड इन लाइफ। फकिंग दिस इज ह्यूमन लाइफ, एवरी सेकेंड देयर इज अ न्यू प्रॉब्लम हियर, राइट? एंड इन दैट यू वॉन्ट टू बी दिस लोनली दैट यू डोंट वांट टू शेयर विद पीपल। एंड चलो मानो तुमने किसी के साथ शेयर किया, तो मेरी मम्मी का एक बहुत ही आर्गूमेंट होता था, बेटा हम किसी के साथ शेयर करेंगे तो वो हमारा मजाक ही बनाएंगे। क्या गारंटी है? सही लोग भी हो सकते हैं, और अगर मजाक बनाया तो उन्हें निकाल दो अपनी लाइफ से। बेहतर लोगों को बताओ, बताते बताते कोई तो मिलेगा जो मजाक नहीं बनाएगा, जो शायद समझेगा, जो अपनी भी चाल बताएगा, राइट? और कुछ बेहतर होगा वहाँ पे than just gulping it all in and then telling me about her problems, how her marriage is not working out, how my dad is shit, how so much work is at home, she feels tired all the time, and her weight is increasing, she doesn't know what to do, her hair are graying, and everything is so pricey, what to do about it. What can a 6-year-old, 7-year-old tell you? What can it tell you? They're like, I was just sharing, I thought you cared about me, I care about you, but I can't do anything here. And ये सब प्रॉब्लम बता के मुझे अपना फ्यूचर भी और ब्लीक लगने लग जाता है जब आप ऐसी चीज़ें बोलते रहते हो। अच्छा, तो इसी के साथ आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे मेरे अंदर की जो ये टेंशन्स हैं कि दुनिया एक बहुत बुरी जगह है और यहाँ पे बेवकूफ़ों के बीच हूँ मैं, और उल्टी सीधी चीज़ें चल रही हैं। ये बड़े लोग, इनमें दिमाग नहीं है, इनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, ये बड़े ही इगोइस्टिक पीपल हैं। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि ना इतना कुछ खास यहाँ है नहीं। तो ऐसी चीज़ें होती थी उस टाइम पे धीरे धीरे, क्योंकि मैं अब अपनी नानी के घर में आप लंबे टाइम तक रहने लग जाओ तो उसका एक फ़ायदा भी है, जो हम लोग वेकेशंस पे थोड़े टाइम पे करते थे वो हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम कर सकते हैं। तो मैं बहुत बोलती थी वहाँ पे, क्योंकि मेरे जो हमारे कुछ पड़ोसी हुआ करते थे उनको बहुत अच्छा लगता था कि मैं इतना पट 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 बोलती हूँ। तो बोलने की तो शौकीन हमेशा से ही मैं रही हूँ, उस वजह से बहुत महाल भी पड़ी है मेरी, क्योंकि फिर मैं सब कुछ ही बोल देती हूँ, राइट? सो तो यहाँ पे वो लोग मुझे बुलाते थे अपने घर पे, कथा वगैरह कही जाती है हमारे यहाँ, कई सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं कथा कहते हैं, सकट की कथा वगैरह वगैरह कथा, तो वो लोग मुझे बुला लेते थे कई बार के। तो वो सब मेरी कुछ अच्छी मेमोरीज़ हैं कि उनको पसंद था मेरा बोलना वगैरह वगैरह। पर कई बार एक ये फीलिंग आती थी कि वो लोग मुझे एक जोकर के जैसे देख रहे हैं। मतलब मुझे किसी को एंटरटेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज दे आर अ गुड स्पोर्ट अबाउट इट एंड दे टेक इट एज अ टैलेंट दैट आई हैव, बिकॉज दैट्स व्हाट इट इज़. The moment people start looking at me when I am performing anything, song, dance, I'm speaking, I'm cracking a joke, they start looking at me like a clown, like in a very condescending way, then I don't feel like doing it. And I'm a really sensitive, perceptive person. I get to sense it really fast कि कौन मुझे कैसे देख रहा है. Like I've had now तो अभी तो मेरे पास ऐसे दोस्त भी आ चुके हैं नए जो मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से सुन रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं. Like if people breathe in a different way, I get to know that is just the limit of my this talent.
I would say senses, right? So I get to know the way they look, the eye contact, posture, micro expressions, I just get to know. So धीरे धीरे मुझे ये परफॉर्मेंस जो कि बचपन में बहुत अच्छी लगती थी, आपको मैं जैसे आगे बताऊंगी, आगे जाते जाते मुझे ये थोड़ी अजीब लगने लग गई. एंड आई स्टार्टेड टू सी, हम लोग जैसे छोटे थे तो वेडिंग्स वगैरह में जा रहे हैं, किसी किसी की शादियाँ हो रही हैं, कुछ हो रहा है, तो मेरी मम्मी मुझे ऐसे धक्का दे के डांस कर डांस कर. इट्स लाइक कि मतलब यू नो मेरी मम्मी को इतना चाहिए है इस बात का लाइक वैलिडेशन कि लोग, सोसाइटी उन्हें अप्रूव करे, सोसाइटी उनकी तारीफ़ करे, कि वो अपने तो खुद ही परफॉर्म कर करके तारीफ़ लेती है. जैसे औरतें होती हैं ना जिनमें इतना लो सेल्फ एस्टीम होता है कि वो 4 काम करती हैं घर के तो उनको तारीफ़ मिलती है, उनको ये थॉट प्रोसेस होता है कि आई हैव टू डू समथिंग टू काइंड ऑफ गेट प्रेजेस, लाइक यू नो मैं अगर किसी काम की होंगी तभी मुझे प्यार मिलेगा. तो मेरी मम्मी जहाँ जाती है वहाँ पे काम करने लग जाती है. मुझे बहुत अजीब लगती है ये चीज़ें. अरे लाओ मैं उठा देती हूँ ये चाय के कप प्लेट, तुम नौकर लगी हो, गेस्ट हो, बैठ सकती हो, रिलैक्स करना आता है तुमको? नहीं, उन्हें नहीं आता है. तो हर जगह जाती थी काम करने लग जाती है. अरे लो 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 बर्तन दो, ही तो बर्तन है, मैं धो. किसी के घर गई हो तुम बर्तन धोने लग जाओगी. लाइक आई यूज्ड टू जस्ट बी लाइक जस्ट डोंट टेल दैट दिस वुमन इज विद मी, लाइक आई कांट. और आई एम नोन फॉर दिस. लोग मुझे कामचोर बुलाएं, जो भी बुलाएं, आई नो देयर इज नो सेल इन माई बॉडी दैट इज अट्रैक्टेड टू हाउस होल्ड चोर्स, कि मैं आपके हाथ से छीन के झाड़ू लगाने लग जाऊंगी, पोछा लगाने लग जाऊंगी, बर्तन धोने हैं मुझे. इस तरीके के ऑड शौक मेरे तो नहीं है. एंड आई बिलीव आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग टू बी लव्ड. My presence itself has brought so much value to people. The way I speak, the way I care, the way I look, every fucking thing brings so much value to people. That's why they always want me. And it's been through so many times in my life. And even if I have to do something, I'll do something that I enjoy. That is yapping. That is telling a joke. That is dancing, singing. Why the fuck I will do chores? And my mom will always teach me this, that काम कर, कमेरी बन, थोड़ी काम की चीज़ें करेगी तब जाके तब किसी का फ़ायदा होगा, तब कोई तेरे को रखेगा. इट्स लाइक दोज पीपल कैन जस्ट यू नो फक देमसेल्व्स. आई डोंट केयर. मुझे उनकी तारीफ़ नहीं चाहिए और मैं आज तक भी नहीं करती. मेरे पूरे खानदान में मैं बदनाम हूँ कि ये काम नहीं करती, काम नहीं करती. शादियाँ होती थी तो शादियों में आदमी लोग बैठे रहेंगे और औरतें जाके काम करने लग जाती हैं, राइट. ये रिलेटिव्स में हमारे यहाँ बहुत ही कॉमन है, आप लोग के यहाँ पे भी होगा. And I, you know, will be just sitting there and my blood boiling कि अब मैं बच्चों के साथ खेल लूँगी वहाँ पे जो है, right. और वो आदमी लोग को मेरा मन करता है कि सालों उठो, करो कुछ, किसी काम के बनो. मतलब they just sit like fucking मूर्तिस, like just sitting there. वहाँ पे जो बाहर वाला गेस्ट रूम था उसमें सारे आदमी लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे मूर्ति बन के, सब अपना अपना फ़ोन चला रहे हैं या कोई बैठ के खाली सांसें ले रहा है, राइट. इधर उधर देख रहा है, फिर वापस वो फिर से फ़ोन चला रहा है या वो चाय पी रहा है. इससे ज़्यादा हिल नहीं रहे हैं, वो इतना ही काम कर रहे हैं. और औरतें वहाँ लगी बनी हैं, ये सब्जी बनाओ, ये करो, पंडित जी को बुलाना है, ये करना है. ये किस लिए पाले हुए हैं, किस काम के हैं ये? फालतू का खाने आए हैं, भगाओ इन्हें यहाँ से. हम ही लोग कर लेंगे ना फिर पूरा शादी का फंक्शन भी. जो किसी काम करें उसे निकालो यहाँ पे. नहीं, पर आदमी एक्चुअली इज़ वैल्यूएबल जस्ट टू बी, इजंट ही? बट औरत नहीं हो सकती. ये थॉट प्रोसेस मुझे इतने टाइम से यहाँ से सिखाया गया कि औरत को कुछ काम में लगना पड़ेगा तभी उसकी कोई वैल्यू है, अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं है. काइंड ऑफ ट्रेनिंग मी टू बी अ वाइफ मटीरियल. जैसे वो पियर्सिंग्स हुई वैसे ये भी चीज़ें, राइट. और तुम एंटरटेन कर रही हो, लोगों को खुश रख रही हो, तुम्हारी वजह से 4 लोग हंस रहे हैं, तुम्हें ऐसा होना है. तो मुझे ऐसा समझ आ रहा था कि मुझे ना मतलब हर एक लेवल पे कुर्बान हो जाना है. नाच के दिखाओ, डांस करके दिखाओ, यू नो झुमके, इन सब की चीज़ों की जगह बनाओ. देखो मैंने फिर से वही किया है ना, झुमका बोला, नाक में something is gone. okay. So what is happening? Okay then. So yeah. So मतलब ऐसा समझ आया कि साला ये पूरी स्कीम मेरे अगेंस्ट ही है. मतलब मुझे सैक्रिफाइस ही करते चले जाना है, मुझे बस देते चले जाना. ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो ताकि मुझे जगह मिले. Fuck that जगह and fuck those people who want it on the cost of me. I will go and kill them by my own hands if I can. But what the fuck? How dare you? Like, you know, think
दैट कि मैं इस बात के साथ ओके हो जाऊंगी और मैं खुश हो जाऊंगी कि ओ अच्छा, बहुत अच्छा हुआ, आपने मुझे रास्ता बता दिया कि कैसे people can want me. And on top of that, then I don't have really much respect for these people. You know, they suck. In my standards, they suck. And you think I want them to want me? I want to stay away from them. I want to stay away from the places they stay at. I want to stay away from the total environment, this ecosystem where these people are. And you're telling me if you behave like this, they'll want you, they want to be with you. I'm like, okay, noted, so I will never do this because I don't want to be with them. That's how I was. Slowly I started getting that whole idea कि ये रिलेटिव्स लोग, हमारी फैमिलीज कैसे काम कर रही है. तो मुझे समझ आया कि हमारे मेरे सिर्फ मम्मी पापा या नहीं, ये पूरी नस्ल ही बेवकूफ़ है. मतलब ये पूरा खानदान ही बेवकूफ़ है. यहाँ पे सारे लोग इतना अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, बाहर कोई बोलता नहीं, बाहर कोई सब कुछ शो ऑफ कर रहे हैं, सच्चाई नहीं है. मतलब मैंने तो खुद ही देखा है कि हम जब छोटे हुआ करते थे तो मतलब छोटे में कज़न्स एटलीस्ट हम लोग आपस में अच्छे से बात कर रहे हैं और हम अपने मन की बातें कर रहे हैं. कुछ टाइम बाद वही कज़न्स भी प्रिटेंशियस हो गए, वो भी अपने मन की बात नहीं हमसे कर रहे हैं. जैसे कि एक अनसेड रूल है जिसको सब धीरे धीरे फॉलो करने लग गए कि अपने मन की बात नहीं करते. आज के टाइम में मैं उन्हीं कज़न्स से क्लोज हूँ जो मेरे से मन की बातें करते हैं और मैं जिनसे मन की बात कर सकती हूँ. मैं उतना ही ओपन अप होती हूँ किसी के साथ जो मेरे साथ उतना ओपन अप होता है. अगर आप 60% ओपन है तो मैं भी 60% ओपन हूँ. अगर आप 100% है तो मैं भी 100% हूँ. बट अगर आप 30% हैं और सोच रहे हैं कि मेरा 100% आपको मिल जाएगा तो आप बेवकूफ़ हैं. So I started to know why this time in my living in hometown कि this is how it works. But thank God I didn't have to live in my hometown for a long time. फिर वहाँ से हमें बाहर जाना पड़ा, एज ए सेड नागालैंड जाना पड़ा. नागालैंड बहुत ही सुंदर जगह थी, बहुत अच्छा लगा वहाँ रह के, बहुत ही सब कुछ अच्छा था. वही एल्डेस्ट डॉटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पे मुझ पे रही. वहाँ पे जाके तब तक मैं 3rd स्टैंडर्ड में पहुँच चुकी थी. तो 3rd स्टैंडर्ड का शुरुआती हाफ आई थिंक जस्ट आई कुड फिनिश देयर, तो तब तक हमारी वहाँ से भी पोस्टिंग आ गई थी. सो नागालैंड बहुत सुंदर जगह थी जैसे मैंने बताया, पर एल्डेस्ट डॉटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी और आता गया मेरे पे. अब मेरे मम्मी पापा पूरे दिन के लिए भाई बहनों को मेरे पे छोड़ के घर से चले जाते थे. मतलब उनको जाना होता था सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, वहाँ पे एक मार्केट हुआ करता था, उसमें जाते थे वहाँ पे लेने के लिए, और उसमें बस जाया करती थी. तो वो दोनों को जाना पड़ता था क्योंकि इतनी सारी सब्ज़ी और ग्रोसरी वगैरह लेने के लिए, तो वो साथ में जाते थे. और मेरे भरोसे खाली, नो अडल्ट, ओनली मी, मैं खुद वहाँ पे हूँ. कितने 8 साल की हूँ उस टाइम पे, मैं 7-8 की हूँ, और मुझे छोड़ दिया है मेरे भाई बहनों के साथ. इनको दूध बना के पिलाओ, इनको खाना खिला देना, इनको परोस दो, इनका ध्यान रखो, इनको टीवी दिखाओ, इनको खुश रखो. तो मैं कुछ ना गेम्स इन्वेंट करती थी मेरे भाई बहन ताकि खुश रहें, वो पूछे ना बार बार कि मम्मी पापा कब आएंगे. और मुझे खुद टेंशन हो रही है कि मम्मी पापा आएंगे भी कि नहीं आएंगे, कब आएंगे, क्या क्या एक्सीडेंट होते हैं, क्या क्या होता है दुनिया में, क्या पता वो आएंगे कि नहीं. और उस दौरान अगर कोई डोर पे आ जाए तो मेरी ऐसी की तैसी, भैया इनको क्या जवाब दूँ. मैं, हमारे यहाँ 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक लकड़ी का और बाहर एक जाली का दरवाज़ा. मैं जाली का खोलती ही नहीं थी, लकड़ी का खोल के अंकल जी पापा घर पे नहीं है, मम्मी घर पे नहीं है. लेकिन उनको समझ आया कि इतनी डरी हुई है, डोंट यू डेयर गो इनसाइड और समथिंग. और कोई आता भी नहीं था, बंद कर देती थी. और मतलब उस टाइम पे मुझे इन्हें ध्यान रखना है बच्चों का. मतलब मैं खुद डरी हुई हूँ यार, मुझे खुद भूख लगी है, मुझे खुद नहीं पता मेरे इमोशंस का मुझे करना क्या है, और मुझे इनको टेक केयर करना है. तो वो चीज़ें वहाँ पे काफ़ी धीरे धीरे आने लग गई थी मेरे ऊपर, मोर देन दैट आई वांटेड. आई वाज लाइक इट इज़ काइंड ऑफ अ फुल टाइम जॉब. फकिंग स्कूल से घर आओ और यहाँ पे इनका ध्यान रखो. दैट इज़ वन बिगेस्ट रीज़न आई डोंट वांट टू बी अ मॉम एवर. लाइक बच्चे का मदर मुझे नहीं बनना है, मुझे कभी चाइल्ड बर्थ और इनसे गो थ्रू नहीं करना है. आई हैव गॉन थ्रू इनफ पेन एंड आई हैव मदर्ड इनफ पीपल, राइट. सो I even count my parents in the people that I have mothered, because as you will go on you'll see that मेरी मम्मी तो अभी से ही मुझे वेंट करने के लिए यूज़ कर रही है पापा के अगेंस्ट वगैरह, लाइक को पेरेंट, बेबी सिट करा रही है, काम करा रही है पूरे घर के, राइट. तो ये मतलब घर के तो मैं इतने काम नहीं करती थी, झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं घर के बहुत सारे काम कर रही हूँ, नहीं, वो काफ़ी आगे जाके हुआ. पर बच्चों को तो मैं संभाल रही हूँ, मतलब जब मेरी मम्मी नहीं संभाल पा रही है. सो लाइक मैं गृहस्थ जीवन में, मेरे को इसलिए गृहस्थ जीवन स्टार्ट करने का कोई मतलब वही नहीं है कि मुझे भी किसी के साथ फैमिली बच्चे पैदा करने हैं, मतलब मेरे को ये सब करना है. मेरे को नहीं करना, मुझे जीना अकेले रहना, तो मुझे अपनी मौज करनी है. मुझे जो बचपन नहीं मिला मुझे वो रिक्लेम करना है, मुझे वो चाहिए. इसी की वजह से जब मैं इस घर में मूव हुई तो सबसे पहले ना मैंने एक बड़ा सा जार लिया और अपनी पसंद की सारी टॉफ़ीज़ चॉकलेट उसमें पूरी भर ली.
और डेली एक एक दो दो तीन तीन, किसी माई के लाल में दम नहीं है मुझे पूछे कि मैं क्यों इतनी टॉफ़ी चॉकलेट खा रही हूँ। मैंने भरे भर के वो खाई, और ऐसे धीरे धीरे करके मैंने सारी क्यूट चीज़ें जो भी मुझे लेना था मैंने ली, वो सब चीज़ें करी, कपड़े वगैरह सब। क्यों? क्योंकि फाइनली मेरे पास मेरा खुद का पैसा है, और जो बचपन जो मुझे भीख मांगने पे मतलब भी नहीं मिल रहा था वहाँ पे, और वहाँ पे उन लोगों में कैलिबर नहीं था मुझे वो बचपन देने का, वो मैं खुद को दे सकती हूँ कम से कम अब। उस टाइम पे तो वो लोग मुझे अपने लिए यूज़ ही कर रहे थे। मेरी मम्मी को सजाने का शौक था तो मुझे सजा दिया, पूछा भी नहीं तुम्हें पहनना क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है, जैसा उन्होंने लगाने की चीज़ें लगा दी। क्या पसंद आ रहा है, हू द फक केयर्स, तुम इतनी छोटी हो तुम्हें क्या पता, पियर्सिंग करानी है पियर्सिंग करा दी, नचवाना है नचा दिया, गाना गवाना है गवा दिया, राइट, चल रहा है मतलब ऐसे। तो अब मैं कम से कम अपनी मर्जी से जीती हूँ, अपने टर्म्स पे कहते हैं ना जैसे, वैसे। एनीवे, सो नागालैंड में एक ही चीज़ जो थोड़ी सी मुझे याद है कि क्योंकि बहुत ही कम टाइम के लिए स्कूल में थी, ये भी कह सकते हैं, इस वजह से वहाँ मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। मतलब स्कूल में मैं ऐसे सीधी जाती थी सीधी आती थी, मुझे कुछ नहीं पता, अपना लंच अकेले खा रही हूँ, और नेचर बहुत अच्छा था वहाँ पे, तो बस वही देखती रहती थी। और आई वॉज जस्ट अ नथिंग इन स्कूल, आई वॉज अ नो बडी इन स्कूल। जबकि LKG UKG वाले स्कूल में थोड़ा मेरा नाम था, क्योंकि वही मैंने बताया कि टीचर मुझे जान गए थे, उसके बाद थोड़े दोस्त बन गए थे, तो वहाँ मुझे अच्छी थोड़ी यादें हैं। पर फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले स्कूल में फिर से वो नहीं था, बस वो घुमे हुए से बच्चे, उनके साथ मैं भी घुमी हुई, वैसा सही था। फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितना ही यू विल फाइंड योर सेल्फ इन वॉट नॉट, बट दिस फेल्ट लाइक दैट हैज़ आई टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो। एंड अब इस वाले स्कूल में भी अब थर्ड स्टैंडर्ड में है, एवरीबडी इज जस्ट माइंडिंग दैट बिजनेस, यू नो, सबके पहले से ही ग्रुप्स बने हुए हैं एंड ऑल दैट। जब आप ट्रांसफरेबल जॉब में होते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये होती है कि आप किसी क्लास में स्पेशली मिड सेमेस्टर अगर ऐसे आते हो तो सबकी गुटबाजी हो चुकी होती है, सब ग्रुप्स बन गए होते हैं। तो अब आप अकेले रहो, इफ़ यू हैव सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी somebody will come and they'll make you part of your group, their group, and then otherwise you will not be। तो मैं उस टाइम पे अकेली ही रह गई थी, एंड ऐसे ही था वहाँ पे नागालैंड में। तो कुछ ऐसी कुछ ज़्यादा अच्छी यादें नहीं, बट हाँ ये जो सब चीज़ें मुझे महसूस हुई, और घर पे जाके वो सब चीज़ें होती थी, एल्डेस्ट डॉटर वाला कि बहुत मतलब घर पे जाना इज़ लाइक, यू नो, हाँ ओके सो व्हाट फ्रेश हेल इज़ दिस टुडे, लाइक आज क्या काम है उस टाइप की फीलिंग। लोग घर पे जाके रिलैक्स करने, मैं स्कूल में जाती हूँ रिलैक्स करने, तब भी वहाँ पे मैं अकेली ही हूँ, पर कम से कम वहाँ पे कोई मेरे पे काम तो नहीं थोप रहा है। स्कूल के काम उसके सामने मुझे बहुत कम लगते थे, क्योंकि इसमें इतना इमोशनल वर्क, ऊपर से मारपीट और पेरेंट्स और डांट और कोल्ड स्टेयर्स और उनके खुद के झगड़े हो रहे हैं। सो ऐसे सी कुछ यू नो लाइफ मेरी रहती थी उस टाइम पे। So yeah, this was the next chapter. No, I know this is a little weird and all that mixed up, but what to do? It's just my life. Can't really judge that. It is how it was. अच्छा, पर नागालैंड के बाद अब मैं जो अगले चैप्टर में जो डिस्कस करने वाले हैं, इसमें अगला चैप्टर इज काइंड ऑफ प्रिटी मच कंटिन्यूअस एंड देयर इज सो मच दैट हैपेंड देयर, क्योंकि वो 5 साल की पोस्टिंग थी हमारी, एंड दैट वाज इन बरेली। So in next one I think that maybe I will do that in 2 parts because it tends to get really long. So we will get to that, and yeah, when I'll get to it, and see you in the next one. And I hope you're understanding today the kind of practitioner I am and what I do, from where all this began.